اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے، جی ہاں، حزب اختلاف یعنی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے ایک بار پھر ووٹ چوری کے معاملے کو زبردست انداز میں پھر اٹھا دیا، الیکشن کمیشن پر حملہ بولا اور کہا کہ اصل ہائیڈروجن بم دھماکہ تو ہونا ابھی باقی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہندوستان کے جینزی سمویدھان کو، آئین کو بچائیں گے، جمہوریت کی حفاظت کریں گے اور ووٹ چوری کو روکیں گے۔ راہل گاندھی کا بڑا بیان آیا ہے۔ راہل گاندھی نے پریس کانفرنس میں ووٹ چوری کے 3 ایسے ثبوت پیش کیے جس سے سیاسی ہلچل بڑھ گئی ہے۔ ایک طرف الیکشن کمیشن اپنی صفائی پیش کرنے میں لگا ہوا ہے تو دوسری طرف بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈران حملہ کر رہے ہیں۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے ووٹ چوری کے خلاف اپنی مہم تیز کرتی ہے اور گزشتہ کل 3 ایسے ثبوت ووٹ چوری کے پیش کیے ہیں جس سے پوری سیاست میں ہلچل مچ گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کے نوجوان، ملک کے اسٹوڈنٹس، ملک کے جینزی آئین کو بچائیں گے، سمویدھان کی، سیکولرازم کی، جمہوریت کی حفاظت کریں گے، ووٹ چوری کو روکیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھا، بالکل صاف طور سے لکھا کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ کرناٹک کی آلندہ اسمبلی حلقے سے 6018 ووٹروں کے ناموں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن بھی پریشان ہے، صفائی میں لگا ہوا ہے، ادھر سے بی جے پی بھی بوکھلا گئی ہے۔ اور راشٹریہ ادھیکش ملکارجن کھڑگے نے بھی کہا کہ آخر معلومات چھپا کر الیکشن کمیشن کس کو بچا رہا ہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر، جی ہاں، جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی کی خدمات کو سلام۔ میرے قائد کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ ان کا سایہ تادیر امت کے سروں پر قائم رکھے، آمین۔ جی ہاں، خبر یہ آ رہی ہے کہ مالیگاؤں میں جو بم دھماکہ ہوا تھا 2008 کا، اور نچلی کورٹ نے اس بم دھماکے کے تمام ملزمین سادھوی پرگیہ سنگھ ٹھاکر سمیت جتنے تھے ساتھ کے ساتھ سب کو رہا کر دیا تھا، لیکن جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی نے نچلی کورٹ کے فیصلے کو، نچلی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل ڈال دی ہے ممبئی ہائی کورٹ میں، اور مولانا ارشد مدنی نے یہ اپیل ڈالی اور باقاعدہ جمعیت علماء ہند نے
माहिरीन वकला की टीम को जमा कर लिया है और जबरदस्त अंदाज में तैयारी के साथ में मुंबई हाईकोर्ट में अपील डाली इन छूटने वाले तमाम मुल्जिमीन के खिलाफ। और अब नतीजा ये निकला कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ जो अपील जमीयत उलमा ने डाली वो सुनवाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर हो गई और तमाम सातों के सातों मुल्जिमीन को हाई कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया गया है। 6 हफ्तों में उनको जवाब दाखिल करना होगा, यानी मालेगांव 2008 बम धमाका मुकदमे की सुनवाई फिर होगी। यानी मुंबई हाई कोर्ट ने मुल्जिमीन को भी, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सातों मुल्जिमीन, कर्नल पुरोहित वगैरह, तो मुल्जिमीन को भी और एनआईए को भी हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। आइए नाज़रीन, बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त सामने आ रही है। जी हाँ, हज कमेटी ऑफ इंडिया को आखिर होश आ गया और अब 2022 की जो रकम बाकी थी, बकाया रकम 2022 की, वो लौटाने का ऐलान हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कर दिया। हाजियों को रकम उनके अकाउंट में बराह रास्त यानी डायरेक्ट मुंतकिल होगी, डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाएगी। मुंबई से जाने वाले हुज्जाज को 9,212 रुपये लौटाए जाएंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से कहा गया है कि हुज्जाज के हेड कवर के अकाउंट में ये रकम मुंतकिल की जाएगी, इसलिए वो अपने खाते एक्टिव रखें ताकि रकम की मुंतकिली में, ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत, कोई मसला ना हो। और मैं आपको बताऊं, ये जो रकम हजारों में नहीं करोड़ों रुपये में है। कौंसिल जनरल जद्दा बराए हिंद की जानिब से 4 बरस बाद अब हिसाब किताब फाइनल किया गया है, जबकि बाज हाजी तो भूल भी गए होंगे कि उनको रकम वापस मिलेगी, मगर अभी 2023-24 का हिसाब भी नहीं हुआ है, 2025 तो दूर की बात है। ये जो 2022 का हिसाब हुआ है तो ये करोड़ों की रकम है जो अब हज कमेटी ऑफ इंडिया को होश आ गया और हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों के अकाउंट में वापस करेगी। नाज़रीन, बड़ी खतरनाक खबर, जी हाँ, हमारी मराठा बिरादरी, मराठा समाज जो जरंग पाटिल साहब की रहबरी और उनके नेतृत्व में रिजर्वेशन को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में जमा हुए थे। हुकूमत घबरा गई, ऐसा कहा जा रहा था। हुकूमत घबराई और घबराने के बाद हुकूमत ने मराठा बिरादरी को हक नहीं दिया बल्कि उनको धोखा दिया। जैसे नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने 1 साल तक बैठने वाले, आंदोलन पर बैठने वाले किसानों को धोखा दिया था, लॉलीपॉप दिया था, कंफ्यूजन करके उनको उठाया था। मैं कह रहा था कि ऐसे ही कंफ्यूजन और ऐसे ही लॉलीपॉप और धोखा मराठा बिरादरी को दिया गया। आखिर वो बात सामने आ गई जो मैं कह रहा था। मराठा समाज ने का रिजर्वेशन गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मराठा समाज ने इल्जाम लगाया कि हैदराबाद गैजेट के बहाने सरकार ने, फडणवीस ने, बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने हमको धोखा दिया, अजीत दादा पवार और शिंदे ने हमको धोखा दिया, हैदराबाद गैजेट के बहाने हुकूमत ने हमको धोखा दिया। मराठा समाज ने रिजर्वेशन गोलमेज कॉन्फ्रेंस में ये इल्जाम लगाया और कहा कि दोबारा तहरीक शुरू की जाएगी, यानी आंदोलन मुहिम खतरनाक अंदाज में दोबारा शुरू की जाएगी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के दबंग और कद्दावर लीडर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन जी सक्काड़ का बड़ा बयान आया है। उन्होंने महाराष्ट्र में वोट चोरी का पर्दाफाश करते हुए कहा कि अब महायुति को, यानी बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार, फडणवीस को सत्ता में, इख्तिदार में रहने का हक नहीं। थोड़ी बहुत भी शर्म अगर होगी तो फडणवीस को फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। चंद्रपुर जिला के राजौरा असेंबली हलके में 6000 से ज्यादा वोटों की चोरी का इंकशाफ हुआ है, पर्दाफाश हुआ है। फडणवीस की पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की। सप्ताह जी ने कहा कि वोट चोरी करके जमहूरियत का, सेकुलरिज्म का कत्ल करने वाली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी भारत को नेपाल और श्रीलंका
बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की मदद से वोटों की चोरी करके सत्ता हासिल की है, इख्तिदार पर कब्जा किया है। यह दावा कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर सबूतों के साथ पेश किया है। चंद्रपुर जिला के राजौरा असेंबली हल्के में भी 6850 वोटों की चोरी साबित हो चुकी है। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र सपकाळ जी ने कहा है कि फडणवीस को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए और फडणवीस को महायुति को सत्ता में रहने का हक नहीं है। राजधानी में बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि अब इलेक्शन करीब आ रहा है और इलेक्शन के मौके पर कुछ दल बदलू होते हैं जो सिर्फ टिकट के लिए और अपने मफाद के लिए अपनी बरसों पुरानी पार्टियों से भी गद्दारी करते हैं। और गद्दारी करने में महाराष्ट्र में दो लोग बड़े मशहूर हुए हैं, वो आप सब जानते हैं। अब खबर आ रही है कि शिवसेना के असल सुप्रीमो उद्धव जी ठाकरे ने शिंदे सेना से जो बागी वापस आ रहे हैं, वापस असल शिवसेना में यानी उद्धव जी की गोद में, तो उद्धव जी ने शिंदे सेना से बागियों की वापसी के लिए बहुत ही अहम शर्त लगा दी है। उन्होंने कहा कि वापस आने वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। और उद्धव ठाकरे की यह हिकमत अमली ऐसे वक्त सामने आई जब सियासत में ये चिमगोइयां चल रही है कि 15 एक्स म्युनिसिपल काउंसिलर जो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे वो वापस उद्धव जी के पास आना चाहते हैं। तो उद्धव ठाकरे ने सख्त शर्तें लगा दी है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में एक मीटिंग में अपनी पार्टी के शाखों के सरबराहों, अध्यक्षों और साबिक कारपोरेटर के साथ इलेक्शन की तैयारियों का आढ़ावा जायजा बैठक लिया। मुलाकात के दौरान उन्होंने बागी रहनुमाओं की वापसी के लिए सख्त शराइत का ऐलान कर दिया है। जाहिर बात है कि अक्सर लोग इधर से उधर जाते हैं टिकट नहीं मिलने की वजह से या किसी दूसरी पार्टी से टिकट लेने के लिए। तब उद्धव जी ने कहा कि जो भी आएगा वो इस बात को जहन में रखें कि मोहब्बत से आता है, सच्ची दिल से उसको पार्टी से मोहब्बत है तो उसके लिए दरवाज़ा खुला है, लेकिन वो दिमाग में बैठा लें कि उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे लालची लोगों की छटाई हो जाएगी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की पीठ पे खंजर घोंपे जा रहे हैं। जी हाँ, अभी बड़ी खबर आ रही है कि पहले उन्होंने टैरिफ लगाकर ट्रंप ने मुल्क को धोखा दिया। इधर हमारे यहाँ की रखेल मीडिया जो है वो ट्रंप और मोदी की जिगरी दोस्ती बताने में लगी रहती है और जिगरी दोस्त लगातार खंजर घोंप रहा है। 50% टैरिफ के बाद अब एक दूसरी खबर आ रही है कि ट्रंप टैरिफ के बाद अब ड्रग्स स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन में हैं। उन्होंने यानी ट्रंप ने कुछ हिंदुस्तानी कंपनियों के अफसरान के वीजे भी रद्द कर दिए हैं। ट्रंप की जानिब से ड्रग्स स्मगलिंग को लेकर कई मुल्कों को दी गई वार्निंग के बाद अब अमली कार्रवाई ट्रंप ने शुरू कर दी है। नई दिल्ली में वाक़ अमरीकी सफारत खाने ने जुमेरात को ये ऐलान किया है कि ट्रंप इंतजामिया ने कुछ हिंदुस्तानी अफसरान और कारपोरेट क़यादत का वीज़ा रद्द कर दिया है। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से बताया गया है कि इन लोगों पर बाकायदा नशा आवर अशिया की स्मगलिंग में मुबैना तौर से शामिल होने का इल्ज़ाम है। अमेरिका ने एक रोज़ पहले ही हिंदुस्तान को उन 23 कंट्रीज की फहरिस्त में शामिल किया जहां ड्रग्स की गैर कानूनी पैदावार और स्मगलिंग की जाती है। यानी हिंदुस्तान का नाम ड्रग्स स्मगलिंग में ट्रंप ने शामिल कर लिया। नाज़रीन, गुजरात के सनाती शहर, कारोबारी शहर सूरत के कड़ोदरा से एक बड़ी खबर मौलाना जसीमुद्दीन ने हमें भेजी है। जहां सूरत में 2-4 रोज पहले एक शानदार ब्लड डोनेशन कैंप हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर मुनक्किद हुआ। इस ब्लड डोनेशन कैंप में बड़ी तादाद जैन भाइयों की, हिंदू भाइयों की और बड़ी तादाद मुसलमानों की शामिल रही और इस ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए से राष्ट्रीय एकता और एकात्मता का, उखवत और भाईचारे का जबरदस्त पैगाम गया।
राजन भाई, अंकुर भाई और वहाँ के इलाके की मस्जिद के जिम्मेदारान अख्तर भाई, ऐसे ही शेख मीरा भाई, मौलाना जसीमुद्दीन, मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान और ऐसे ही मोहम्मद हिदायत, मोहम्मद अफसर और मोहम्मद, ये तमाम, यानी हो सकता है कुछ लोगों के नाम मैं भूल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं बताऊं कि इतना शानदार कैंप रहा कि इस कैंप में हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर तकरीबन 100 बोतल खून, अपना ब्लड डोनेट किया, अतिया किया। आप जानते हैं कि ब्लड देना ये भी एक बहुत बड़ा काम है, बड़ी नेकी का काम है। जब हमारा खून किसी की जान बचाने के लिए काम आ जाता है तो जाहिर बात है कि ये बड़ा काम होता है, किसी की जान बचाना। रब इससे खुश होता है, अल्लाह इससे खुश होता है। और इस वक्त मुल्क में नफरतों के खिलाफ अगर इस तरीके के हिंदू मुस्लिम एकता के साथ में अगर ब्लड डोनेट के प्रोग्राम होते हैं तो हम ऐसे प्रोग्राम्स को सलाम करते हैं। तो ये कड़ोदरा, चालथान, सूरत, गुजरात के इलाके में ये ब्लड डोनेशन बड़ा कामयाब रहा और बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 बोतल खून इस मौके पर हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर अपने देश की सेवा, मानव सेवा और इंसानों की खिदमत के लिए अपने खून का नजराना और हदिया, अतिया, डोनेशन पेश किया। मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जगह जगह होना चाहिए और में अमन, अमान, एकता, एकात्मता की हवाएं और फजाएं कायम होनी चाहिए। मैं इस ब्लड डोनेशन कैंप सजाने वाले तमाम ही हिंदू मुस्लिम जितने वडील और बड़े थे, जिसमें दीपक भाई है, अख्तर भाई है, राजन भाई है, अंकुर भाई है, इन तमाम को और पूरी टीम मैं दिल की गहराइयों से बधाई और मुबारकबाद पेश करता हूँ और फिर आपसे कहता हूँ कि ऐसे काम करते रहिए। नाज़रीन, एक वीडियो और एक बयान इस वक्त वायरल हो रहा है, जी हाँ, कि खान या मुसलमान मुंबई का मेयर बनता है तो शहर की तरक्की में तेजी आएगी। बीजेपी के सदर अमित साटम को मुसलमानों की हिस्ट्री का मुताला करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए मुसलमानों की हिस्ट्री की। समाजवादी पार्टी मुंबई महाराष्ट्र के सदर और एमएलए अबू आसिम आजमी ने अमित साटम के इस बयान पर रिएक्शन जाहिर करते हुए यह बयान दिया कि वो किसी खान या मुसलमान को मुंबई का मेयर नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि अमित जैसे लोग रोजाना संविधान के खिलाफ काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम के मसाइल उठाते हैं, इन्हें एमएलए का तो टिकट भी नहीं दिया जाना चाहिए, फिर भी बीजेपी ऐसे लोगों को मंत्री तक बना देती है। मीनाताई ठाकरे के मुजस्सिम पर रंग फेंकने के मामले पर उन्होंने कहा कि रंग फेंकने वालों के खिलाफ अबू आसिम ने कहा कि सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बताया गया कि फेरोज नामी एक मुसलमान शख्स ने 400 किलो मंशियात लाई, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो वो मुसलमान नहीं था। इसी तरह आसिम साहब ने कहा कि बाद औकात मुंबई पर दहशतगर्दाना हमले की अफवाहें मुसलमानों के नाम पर फैलाई जाती है। समाज दुश्मन लोग हिंदू मुस्लिम नफरत को हवा देने का काम करते हैं और रियासत महाराष्ट्र की शांति अमन में खलल डालने की साजिश कर रहे हैं। वोट चोरी के बारे में भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नहीं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, पूरे मुल्क को वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और जमहूरियत और संविधान को बचाने के लिए मैदान में आना चाहिए। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के वजीर आला फडणवीस ने औरंगाबाद शहर की आवाम को पूरी तरह से धोखा दिया, गुमराह किया। बताया जा रहा है कि वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 800 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, खास किए गए और 330 करोड़ रुपए सिर्फ सूद ब्याज के तौर पर अदा किए जाएंगे। वज़ीर आला फडणवीस ने यह दावा करते हुए शहर के लोगों को गुमराह किया। इनके मुताबिक हुकूमत ने शहर के लिए 2700 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूरी दी है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 800 करोड़ रुपए फराहम करने का भी फैसला किया है। दरहकीकत महाराष्ट्र सरकार ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए हुड़को से 822 करोड़ रुपए कर्ज के तौर पर लिए, जिसे कॉर्पोरेशन सूद के साथ अदा करेगी और 330 करोड़ रुपए सिर्फ सूद के तौर पर अदा किए जाएंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरीके से जनता को धोखा दे रही है।
मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, बीक्योरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट